NC member and also the district president of Bargarh district Odisha. ये जो बात हमको कहना था एक्चुअली राजेंद्र जी ये बात बोल दिया है एक प्रकार का। देखिए अब तक हम लोग मानते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा संगठन पहुंचा नहीं है, तो हर डिस्ट्रिक्ट में फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस के जाएगा कैसे, ठीक है ना। तो हमको एक काम करना होगा कि जहां जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारा संगठन है वो डिस्ट्रिक्ट तो भेजेंगे, सब भेजेंगे अपना, जो भेज चुके हैं नहीं भेजे हैं वो भेजेंगे। और जहां संगठन नहीं है भी, मतलब जहां डिस्ट्रिक्ट में संगठन है बार एसोसिएशन और सब डिविजनल बार एसोसिएशन, तहसील बार एसोसिएशन जितना है वहीं पे भी मतलब रेजुलेशन जाए कि डिस्ट्रिक्ट ग्राउंड लेवल से, तो हमारा जो डिमांड है इसको थोड़ा फोर्स मिलेगा। ये मेरा सजेशन। बहुत अच्छा सुझाव, बहुत बढ़िया। और कोई सदस्य अपना कुछ कहना चाहते हैं इस बारे में? और किसी का कोई सुझाव है तो आमंत्रित है, नहीं तो हम राजेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको कंक्लूड करेंगे विषय को। अभी तो कोई सुझाव नहीं आया, लगता है कंक्लूड कर दी। ठीक है राजेंद्र जी। Yes. So now we can decide by the next working day. The rest of the districts or the rest of the state units will send their representation to law minister, so that immediately after our central leaders they can meet the law minister directly with a memorandum, because February 1st the government is going to introduce their budget in the parliament. So before that we want to submit our representation before the law minister. So try to send representations from districts, the remaining districts, and the zonal secretaries has to take initiative. So wherever we are having district units, if we don't have any district units in any districts, we can make use of the neighboring districts. Some workers can go to there and contact with some other person, so through them we can send a representation representing that districts. So that will be useful for the further organizational expansion. For that also Pravas is needed. At least over phone we have to make arrangements to send the representation from the remaining districts on or before 26th January. Over to Parimal Bhai ji. धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र जी और पद्मकांत जी, अच्छी तरीके से विषय भी रखा और समय पे पूरा किया। इसमें मैं मानता हूं कि हर एक प्रांत का टेस्ट था कि केंद्र से कितने जल्दी अंतर प्रांतों ने किया है और अच्छी व्यवस्था बैठाएंगे तो और अच्छा होगा। सुझाव के दरमियान हम सब म्यूट रखेंगे और अगर हंसने का प्रसंग है तो हंसेंगे, लेकिन जरा धीरे से हंसेंगे, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम रह गए हंसने में, तो ये जरा ध्यान रखिए। आपका जो विषय है वो है वेलफेयर ऑफ एडवोकेट्स, एक्सपेक्टेशन एंड लिमिटेशन, और ये विषय भी रखने जा रहे हैं आदरणीय श्री राजेंद्र जी का परिचय हो गया है, और आदरणीय पारिजीत जी नागपुर में प्रैक्टिस करते हैं और अपने स्पेशल इन्वाइटी है, और उनके साथ है आदरणीय प्रशांत जी,
वो स्पेशल यूनिवर्सिटी है केंद्र की टीम में और रांची में प्रैक्टिस करते हैं। ओवर टू राजेंद्र जी। Namaste, Namaste ji. Again, the same related issue in which we have discussed earlier. So, welfare of advocates, expectation and limitations. So, there are welfare measures. Some welfare measures are there in various states. Some welfare fund systems are there. There is no central welfare scheme for the lawyers. Of course, Central Bar Council, some meager amount is there for the welfare of lawyers. At the time of enrollment, we have to remit some small amount, and it will get, I think, some 30,000 or 35,000 is now. That is the maximum amount which you have you are getting from the Central Bar Council. For the welfare of lawyers, the respective state bar councils have introduced welfare fund schemes in which the lawyers can join. So for fund generating system is there. In Kerala, there is a welfare fund system is there. Now the maximum amount which we can avail from the welfare fund is 10 lakhs. A member who is completing his 40 years tenure in the fund will get maximum 10 lakhs rupees. That is the welfare fund which is provided in Kerala. For which either you have to stop your practice or you have to leave this earth. That is the condition. So I think in other states also, this type of welfare schemes are there. For the sake of information, uh, the respective state general secretaries or the zonal secretaries, they can explain what are the schemes available in various states, what is the amount, what is the mode of contribution, the source of income. In Kerala, the source of income is the yearly subscription remitting by the members in the fund, as well as we have to affix welfare fund stamp in the wakalat. And as per court fees section 76, we have to remit, the clients have to remit 1% of court fee, 1%. प्रशांत सिंह को ट्राई कर रहे हैं। नहीं, वो No, any other state general secretary or zonal secretary? Salam Rupchandra, General Secretary, Manipur State. So in our state, the practice is like this. What is called some of the wealthy lawyers, they'll contribute some to higher bar association. And that be from this rupees 3,000.
and the amount kept in a fixed pot by the court bar association. Then, when an advocate applying which 3 diseases, they begin to 30,000 per advocate. And whenever an advocate unfortunately spares, he or she would be provided rupees 1 lakh. This practice in our place. And there is no other schemes in our place. Thank you. Yes, next. In UP state, am I audible? हाँ बोलिए साहब। उत्तर प्रदेश में राजेंद्रन जी जो डेथ केस है उस पर 5 लाख का प्रोविजन है, और कोरोना काल में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ यूपी ने जो ट्रस्टी है, जो वहाँ की न्यासी संस्था है एडवोकेट्स वेलफेयर के लिए ट्रस्ट है, उससे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को कुछ फंड एलोकेट किया है। लाइक दिस मेरठ में 27 लाख रुपीस उन्होंने एलोकेट किए हैं। और मेरठ, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं मेरठ का ही बता सकता हूँ, मेरठ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरठ में लगभग 7,500 एडवोकेट्स हैं। तो वो जो फंड आया है लगभग प्रत्येक मेंबर के लिए 700 से 750 रुपया प्रति व्यक्ति, जो प्रति सदस्य के रूप में एलोकेशन है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी लंबी लिस्ट है टर्म्स एंड कंडीशंस की, और यदि उन टर्म्स एंड कंडीशंस को हम देखते हैं तो उसमें वो टर्म्स एंड कंडीशंस तो एक रिक्शा पुलर ही फुलफिल कर सकता है। ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस स्टेट बार काउंसिल की हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 25,000 कोरोना अफेक्टेड पर्संस को मेरिट वेरिएशन जो है 25,000 रुपीज पर व्यक्ति जो है, जो कोरोना अफेक्टेड हुए हैं एडवोकेट्स, उनको वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिसबर्स कर रहे हैं उस फंड को। तो बहुत ज्यादा वेलफेयर की ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ना तो स्टेट बार काउंसिल के लेवल पर है, ना डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के लेवल पर है। यहाँ स्थिति कुछ इस प्रकार है। धन्यवाद। बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका। हाँ रंजना जी, बिहार। हाँ सुनील जी। हाँ बिहार। हाँ जी। हाँ बिहार में कोरोना काल में बार काउंसिल के माध्यम से हर एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को या बार एसोसिएशन को लमसम अमाउंट मुहैया कराया गया। जितने एडवोकेट फॉर्म भरे थे उसमें सबको तो नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ लोगों को 2-2 हजार रुपये प्रति एडवोकेट के हिसाब से मिला है। और उससे ऊपर बात करें तो वेलफेयर ट्रस्टी कमेटी सबसे पहले पूरे भारतवर्ष में बिहार में ही गठित हुई थी, लेकिन बिहार में ही उस ट्रस्टी कमेटी की स्थिति बार काउंसिल के स्तर पर लचर व्यवस्था है। यद्यपि कि वेलफेयर स्टाम्प 5 रुपया से बढ़कर आज 25 रुपया हो गया, लेकिन एडवोकेट का वेलफेयर फंड अभी तक जितना बढ़ना चाहिए 5 गुना 6 गुना नहीं बढ़ पाया है, अधिकतम 4 लाख से ऊपर नहीं गया है। रही बात इस तो ये बिहार में डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन बहुत मजबूत है वेलफेयर के मामले में।
बार काउंसिल से बहुत ज्यादा लाभ एडवोकेट को नहीं मिल पाता है। चप्पल घिसता है लेकिन बहुत नहीं मिल पाता है, वहां भी धांधली है। हेलो, जी झारखंड हाँ। में वो क्या कर सकती है वो देखना चाहिए। सब स्टेट के पढ़ने के बाद बार काउंसिल को भी इसकी प्रति देनी चाहिए और बार काउंसिल को भी कहना चाहिए कि इसके हिसाब से सभी स्टेट के हिसाब से जो अच्छा हो सकता है वो करो। एक बात यह है और दूसरी कुछ करना चाहिए, सामूहिक तो हो सकता है। तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ये सभी एडवोकेट की होनी चाहिए। इसके लिए सभी एडवोकेटों के सामने ये विषय हर साल में एक बार बना के रखना चाहिए कि हम एडवोकेट है, प्रायः सभी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर में प्रवास करते हैं और एक्सीडेंट होने का चांसेस भी बहुत है। इसीलिए ये पर्सनल एक्सीडेंट की पॉलिसी रखे। और बार एसोसिएशन भी अगर विचार करता है तो बार एसोसिएशन के साथ मिलके उनको कहना चाहिए कि एक ऐसी व्यवस्था बनाओ, सब लोग पर्सनल एक्सीडेंट के लिए अपना पैसा देंगे तो ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम भी मिलती है। तो ग्रुप इंश्योरेंस की स्कीम को भी देखना चाहिए और उसका अभ्यास करना चाहिए। तो ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा तो हमारा काम भी उसके कारण कभी भी एक्सीडेंट होता है तो 5 लाख से कम नहीं ऐसा इंश्योरेंस होना चाहिए, 10 लाख का, 15 लाख का, ऐसा तो ऐसा करना चाहिए। और बाकी के वेलफेयर के लिए भी ऐसी कुछ स्कीम जो है उसको देखना चाहिए। नमस्कार, आनंद नायक अपने आनंद जी प्लीज। हाँ, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा भी न्यू इंडिया इंश्योरेंस की स्कीम है ऐसी, एक्सीडेंट और तो ग्रुप इंश्योरेंस। उसमें हर व्यक्ति इंडिविजुअल इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस उन्होंने लिया है लेकिन वो बाकी जो है कुछ देना नहीं पड़ रहा है और मेडिकल नहीं करनी पड़ती है 60 साल के लिए भी, 60 साल के ऊपर को। और एक्सीडेंट इंश्योरेंस है 10 लाख से लेके 50 लाख तक का उनका इंश्योरेंस का ये है। इंडिया इंश्योरेंस से उन्होंने एक किया है, लेकिन उसमें कैसा है ज़्यादा मेंबर होंगे तो प्रीमियम कम आता है और प्रीमियम मेंबर कम होंगे तो प्रीमियम बढ़ता है। तो लॉकडाउन में काफ़ी प्रयास किए बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा ने कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बने तो प्रीमियम कम हो जाए ग्रुप इंश्योरेंस में, इसलिए प्रयास किया। लेकिन वो लॉकडाउन में होने से कई वकील को मेंबर नहीं बना पाए। अभी फिर से उसके आ जाएंगे रेगुलर हो जाने के बाद, तो मुझे आशा है कि वो उसमें ज़्यादा लाभ वकीलों को मिलेगा। लेकिन प्रीमियम हाई होने से फिर मेंबर नहीं बन पाते हैं। न्यू इंडिया इंश्योरेंस एक मेंबर कम है करके प्रीमियम ज़्यादा है, लेकिन हर साल वो भरना पड़ता है आपको और वो नहीं भरेंगे तो फिर पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ऐसा है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस के लिए वैसा है। मेडिक्लेम का अलग है, वो अपने लेकिन वो भी न्यू इंडिया इंश्योरेंस का ही है। सिर्फ उसमें बेनिफिट एक है कि हेल्थ चेकअप नहीं रहती है,
और कोई भी डिसीज के लिए मिलता है, ऐसा है, कोई बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट है नहीं। और वेलफेयर के हिसाब से देखा जाएगा तो एकदम निगर अमाउंट मिलती है। एक्सीडेंट और कुछ बीमार सीरियस बीमार है उसका क्लेम के लिए वकीलों को मिलता है, लेकिन कैंसर और ऐसे कोई बीमारी है उसमें उसका लाभ मिलता है। जनरल ऐसा कुछ हॉस्पिटलाइजेशन के लिए उसको ज़्यादा रकम मिलती नहीं है उसका वेलफेयर से। और गुजर जाने के बाद कुछ 2.5 लाख तक का प्रोविजन बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा में है, 2.5 लाख तक उस वकील को। मुझसे ज़्यादा पारिजात उसके लिए बता सकते हो, मेंबर है लेकिन वो नहीं है, तो मुझे जो शॉर्ट पे उसकी जानकारी थी वो मैंने बताई। धन्यवाद। नमस्ते जी। अधिवक्ता परिषद गुजरात प्रांत में से बोल रहा हूँ, महामंत्री। अभी हाईकोर्ट ने, गुजरात हाईकोर्ट ने एक वेलफेयर, सेपरेट वेलफेयर स्कीम शुरू की थी जिसमें सेपरेट अकाउंट था। इसमें सभी एडवोकेट ने करीबन 28 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, 38 लाख इकट्ठा किए थे, और जिसमें एडवोकेट्स 159 एडवोकेट्स को 15,40,000 की सहायता दी थी। 178 क्लर्क, प्यून और टाइपिस्ट को 5,70,000 की सहायता दी हुई है। और अभी जो फंड है अभी हमारे पास जो शेष राशि बची हुई है वो 9 लाख है। और ऑनरेबल गुजरात गवर्नमेंट ने भी अभी 5 करोड़ की सहायता बार काउंसिल ऑफ गुजरात को दी हुई है। चेयरमैन ने बताया कि ये वेलफेयर फंड से भी अगर लोन का स्कीम वो कुछ बार काउंसिल ऑफ इंडिया से डिस्कशन में है, हम वो होने के बाद करेंगे बताए थे। और इसके अलावा हमारे पास इंश्योरेंस स्कीम है, मेडिकल बार ने एप्लीकेशन कॉल की थी कि कोई अमाउंट उसमें फिक्स नहीं था, कि सब्जेक्ट टू किसी की कैसी रिक्वायरमेंट है, हम उस बेसिस पे उन्होंने एप्लीकेशन कॉल किए थे। और जो वेलफेयर का बार काउंसिल की जो है वो 25 रुपए का वो वकालतनामा का जो टिकट लगता है उसके अनुसार वो वेलफेयर फंड है, एक इंडिपेंडेंट कमेटी है, उसमें भी उन्होंने एप्लीकेशन कॉल की थी कि हम सब्जेक्ट टू कंडीशंस देंगे। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चीफ मिनिस्टर वेलफेयर फंड एक क्रिएट की गई थी। उसके अंतर्गत ग्रुप इंश्योरेंस 2 मेडिक्लेम की 5 लाख की और 10 लाख की लाइफ इंश्योरेंस, वो अभी एप्लीकेशन उनके अप्रैल में एडवोकेट्स को कहा गया था अप्लाई करने के लिए, और अभी दिसंबर माह में उनकी पॉलिसीज आनी शुरू हो गई थी। तो वो लाइफ इंश्योरेंस की आ गई, मेडिक्लेम की भी 5 लाख की वो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से उसकी योजना बनी थी। धन्यवाद। यस, ज्ञानमोहन जी, उड़ीसा। So far as Odisha is concerned, Bar Council with much persuasion, Bar Council has granted rupees 5,000 each.
the advocates who were suffering from corona, that means they were not tested positive, who were very much poor advocates, they were provided with 5,000 rupees as the assistance. So far as Bar Council Welfare Fund is concerned, we have a contributory pension scheme. At the age of 65, if you surrender your certificate, then supposing you are doing 4 pension scheme, they will be getting 10,000 rupees per month as pension. And so far as death is concerned, 2,70,000. Earlier it was 90,000. Now it is 2,70,000. You will be getting if some advocate will expire in an accident. That is the. And so far as welfare fund is concerned, we are affixing 15 rupees. 15 rupees welfare fund stamp on the Wakalatnama. And in that welfare fund scheme, the Bar Council provides whoever suffers from any diseases or accident, they are being provided with the assistance as per the decision of the committee, welfare committee. That all we have in Odisha. Thank you. Rajendran ji, over to you, sir. In Tamil Nadu, in Tamil Nadu, जी रमेश हाँ जी in Tamil Nadu, since last year, with the help of the state government, the state bar council launched the newly enrolled lawyers for 3,000 rupees per month for 2 years. That is the one of the great achievements as far as our bar council of Tamil Nadu is concerned nowadays. And as far as with the help of the Tamil Nadu government, the death benefit amount will be increased up to 6 lakhs, out of which 5 lakhs from state government and 1 lakh from respective district bar associations. And apart from that, major district bar association 1,10,000 rupees immediately within 48 from the data 48 from the time of the death of the lawyers. And one more thing, as far as the exclusive in Erode court is concerned, if suppose the lawyers are suffering as far as the financial aspect is concerned, senior advocates, they have collected 25,000 to 50,000 and handed over to within 24 hours. That is the system is there in as far as the Erode district is concerned. And apart from that, medical insurance scheme, since for the past 7 years, it has been launching and implementing. And so far through this scheme, more than 80,000 advocates, they are getting benefited. And now the Bar Council of Tamil Nadu introduced the full medical checkup at the rate of 1,250. So through which also
Conclude. Time is over. Yes, now we can conclude this subject. See, there are so many expectations regarding the welfare by the lawyers, and so many limitations are also there. The various different states, they are having they may have their own opinion. There are so many difficulties. The amount may be very meager. How to gather the amount, the source of income to the fund. So many problems may be there, and the lawyers are have their own opinion. This subject, this issue can also make use of to the development of organizational work. To my personal experience in Kerala, interfering in the welfare fund issue, I can very well say that Adhivakta Parishad in Kerala has got tremendous acceptance among the lawyers throughout Kerala, because we have involved in the issue. Last time there was only 5 lakhs rupees. The maximum benefit was 5 lakhs rupees. Continuously, we have demanded for the enhancement of amount, conducted various type of agitations, including 48 hours fasting in front of the secretariat. And finally, it was enhanced to 10 lakhs. While presenting the amendment to the bill, amendment to the act by the law minister, in the aims and objectives of that amendment bill, Adhivakta Parishad's name is reflected there. It was narrated that representations were made by Bharatiya Abhivashaka Parishad, some bar associations likewise. So, in my personal experience, I can very well say that by interfering on this issue, we have got tremendous acceptance among the lawyers in Kerala. Likewise, we have to interact with the lawyers and gather their opinion and we can formulate a concrete idea about the welfare schemes. What are the schemes existing now, and what will be, or we can formulate our opinion in the future also. So the respective state, they can make some committee, and the details can be put into the group, so that the other states can also, or other districts can also understand what are the systems available in the other states. So now I am concluding this. Over to Parimal Bhai ji. जी नमस्ते। बहुत अच्छी तरीके से विषय रखा है, इसीलिए फिर से राजेंद्र जी का धन्यवाद, और आप सभी का भी धन्यवाद, क्योंकि 2 घंटे से हम बैठे हैं और निद्रा देवी का स्पर्श नहीं करने दिया है, और अब हम अंत में आ रहे हैं, अंत तक जा रहे हैं। मैं अपने राष्ट्रीय संगठन मंत्री जयदीप जी को निमंत्रित करता हूं, और ये विषय उनका मार्गदर्शन का रहेगा। इसमें चर्चा सुझाव वगैरह नहीं है, तो मैं जयदीप जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपना विषय रखें। Am I audible, Parimal bhai? जी। सबको नमस्कार। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनायक दीक्षित जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री मूर्ति जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय वीएम भारद्वाज जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष
श्रीमती मीराताई खरक्कड़ जी, राष्ट्रीय महामंत्री डी भरत कुमार जी और नेशनल काउंसिल मीटिंग में उपस्थित कश्मीर से कन्याकुमारी और नागालैंड से राजस्थान तक की पूरी भारत की सभी कार्यकर्ताओं को मैं अपना हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज एक विशेष महत्व के दिन है। भारत माता की सपूत तो ऐसे महानुभावों को स्मरण करते हुए और आज की बैठक की इस सत्र को मैं आगे बढ़ाने के प्रयास करता हूं। ये सत्र में ऐसे कुछ विषय है जिसमें हम सभी अपना अपना प्रांतों में कार्यरत है और अभ्यास वर्ग जो हमारी संगठन की नींव है, एक कार्यकर्ता, कुछ सूत्र मैं रख रहा हूं, तो इसको आप अपना प्रांत में जब अभ्यास वर्ग करेंगे तो इसका स्पिरिट को अब अपनाइए। हो सके अपने प्रांतों की अनुसार हम जो अभ्यास वर्ग करेंगे वो जैसे मैंने अभी जिक्र किया, अपने बोली, अपने शैली, अपना कल्चर, अपना थिंकिंग प्रोसेस, अपना वर्किंग स्टाइल, उस हिसाब से इसको थोड़ा मोल्ड करना पड़े तो वो हम कर सकते हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन हमारा जो मूल भाव है वो स्पिरिट आपके सामने मैं रखने के प्रयास कर रहा हूं। ये कोई नए विषय नहीं है, हमने गत इतना सालों से ये करते आ रहे, बस आपके सामने मैं दोबारा एक बार स्मरण दिलाने का कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमारे इस साल जो तय हुआ है और अभ्यास वर्ग हम अपना प्रांत लेवल में करेंगे, तो प्रांत लेवल में जब हम अभ्यास वर्ग करेंगे उस पे हमें ये ध्यान देना चाहिए अभ्यास वर्ग की संख्या अधिक ना हो, आइडियल संख्या हो 70 के बीच, क्योंकि तब एक क्लास के नाते हम अच्छे से ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। और जहां पे बड़ा प्रांत है तो उसको हम अलग
प्रदान 2 डे 1 नाइट, तो उसका टाइमिंग जो हिसाब से हो सके उसको हम तय करें। इसमें अवश्य जो होना चाहिए, इसमें जैसे परंपरागत बाकी अपना कार्यक्रम में इनॉग्रल सेशन रहता है, इसमें वैसे टाइप का इनॉग्रल ना हो। इसमें इनॉग्रल मतलब डायरेक्टली सत्र का शुरुआत, और इसमें हम प्रयास करें कोई जजेस वगैरह को इसमें ना बुलाए, क्योंकि ये प्योरली संगठनात्मक सत्र है और संगठन की व्यक्ति इसमें प्रकाश डाले, और ना ही तो इसमें कोई राजनीतिक क्षेत्र की पदाधिकारी ऐसे किसी को बुलाना। हम अपना संगठन की जो परंपरा है उसको निभाते हुए इसको करेंगे। जैसे इसमें अवश्य होना चाहिए अधिवक्ता परिषद की इतिहास, हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद हम जब करेंगे, जब हम अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की हिस्ट्री की बात करेंगे, साथ साथ हमारा जिस प्रांत में हो रहा है उसी प्रांत का भी अधिवक्ता परिषद की हिस्ट्री क्या है वो भी नए नए कार्यकर्ता को बताने का आवश्यकता है। फिर हमारे विजन एंड मिशन, जो हमारे सामने दृष्टिकोण क्या है, हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, अधिवक्ता परिषद की गोल क्या है। जब हम कहते हैं अंतिम व्यक्ति तक हम न्याय दिलाना चाहते हैं, देश की सर्वांगीण उन्नति में हम भागीदार होना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है उसके माध्यम से हमें जाना चाहिए, संगठन को कैसे बनाना चाहिए, और संगठन का जो ढांचा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके बारे में भी हमें जानकारी देना है। जैसे नेशनल लेवल पे नेशनल एग्जीक्यूटिव है, तो नेशनल एग्जीक्यूटिव की रचना कैसा होता है, उसमें कितने दायित्ववान कार्यकर्ता रहते हैं, पूरा देश भर से कितना उसमें रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में कार्यकर्ता रहते हैं, वो सबकी जानकारी देना चाहिए। फिर नेशनल काउंसिल जो सबसे महत्वपूर्ण बॉडी है, उसका संरचना क्या है, उसमें कौन कौन रहते हैं, इसका जानकारी देना चाहिए। जानकारी देना चाहिए जो अपना जिस प्रांत में हो रहा है वहां की स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, वहां की फंक्शन के बारे में, और अलग अलग दायित्ववान जो कार्यकर्ता है उनका क्या क्या रोल है, क्या रोल निभाना है, उसके बारे में। फिर जो वैसे ही महत्वपूर्ण है स्टेट काउंसिल, उसका भी संरचना के बारे में जानकारी देना है। फिर डिस्ट्रिक्ट कमेटी, वो कैसे बनते हैं, उसका संरचना कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन पदाधिकारी रहते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कमेटी जब बनाएंगे तो किनके साथ परामर्श करके डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाना चाहिए, उसका जानकारी देना चाहिए। फिर सबसे आखिर जो है अपना कोर्ट यूनिट कमेटी, जिसको अपना सबसे नीचे और फंक्शनल बॉडी कहते हैं। तो कोर्ट यूनिट कमेटी हम कैसे बनाएंगे, उसका क्या रोल रहेगा, उसमें कौन सी कैसे टाइप के कार्यकर्ता काम करेंगे, इस विषय में हम पूरा जानकारी देंगे। और हर एक प्रांत में, डिस्ट्रिक्ट में, कोर्ट यूनिट में, जैसे हमने पहले भी चर्चा में सुने, जो न्याय प्रवाह अपना जो क्वार्टरली मैगजीन है, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो, ज्यादा से ज्यादा अधिवक्ता इसके मेंबर बने, इसके लिए एक छोटी सी टोली और एक इंचार्ज बनाने की आवश्यकता है। वैसे ही पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को देखने के लिए एक छोटी सी टोली और इंचार्ज बनानी चाहिए। ये हर एक स्तर पे, स्टेट पे, डिस्ट्रिक्ट पे, कोर्ट यूनिट पे। फिर न्याय केंद्र जो अपना है, अंतिम व्यक्ति तक न्याय दिलाने का सबसे बड़ा स्तंभ, न्याय केंद्र देखने के लिए भी एक छोटी सी टोली, एक इंचार्ज। और अपना जो रेगुलर कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण है स्वाध्याय मंडल, स्टडी सर्कल, उसको भी देखभाल करने के लिए एक छोटी सी कमेटी और इंचार्ज। ये भी अपना ऑर्गेनाइजेशन संरचना में जरूर सबको जानकारी मिलना चाहिए। उसके बाद हम आते जो अपना स्टडी सर्कल या सेमिनार या वर्कशॉप या सिंपोजियम जो करेंगे,
उसका हमें ध्यान रखना है जो पर्टिकुलर जो इवेंट होने जा रहा है उसका हम इंचार्ज और कुछ कमेटी बनाए, तो वो टीम जो ऑर्गेनाइज करेंगे वो अपना साथ बैठे, और जो एक सीनियर एडवोकेट या जज साहब उस स्टडी सर्कल या सेमिनार वर्कशॉप सिंपोजियम में मूल विषय रखने वाले हैं, पहले से उनसे हम थोड़ा राइट अप ले ले और उसको कार्यक्रम के अंत में सभी पार्टिसिपेंट को डिस्ट्रीब्यूट करे, ताकि वो जो सुने हैं वो उनके रिकॉर्ड में भी रहे, आगे भी चर्चा के लिए रख सके। फिर जूनियर एडवोकेट हमारे साथ जो जुड़े हैं उनको भी मौका देना चाहिए जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करे, पहले से उनको आग्रह करे वो अपना स्टडी करे उस विषय में और वो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करे, और इसकी प्रक्रिया के माध्यम से हम अपना यंग जनरेशन जो एडवोकेट्स है उनको भी कार्यकर्ता निर्माण की हेतु उनको भी आगे बढ़ाएंगे। और जैसे हम सालाना एक बैठक करके तैयार करें जिसमें हमें एक सब्जेक्ट डेटा बैंक करना चाहिए, जो साल में अगर महीने में 1 या 2 स्टडी सर्कल करना है तो उसके लिए कुछ सब्जेक्ट का हम चयन करें जो इस विषय पे हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी हम तत्काल कुछ विषय भी ले सकते हैं, कोई नए एक्ट्स या बिल्स आ रहे पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में, उस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं। हम कभी कभी डिबेट्स भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और यंग एडवोकेट्स जो जुडिशियरी का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी हम ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज करें। कई जगह हमारे बहुत उत्साही कार्यकर्ताओं ने परमानेंट ऐसे कोचिंग क्लासेस का भी शुरुआत किए हैं, उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। तो ऐसे जैसे हम डेटा बैंक बनाएंगे, साथ साथ ही हम एक स्पीकर्स का नाम का बैंक वो भी बनाए, जो एक सपोज हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या कोर्ट यूनिट में बैठे हैं, जो हमारे कोर्ट में या हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा सीनियर एडवोकेट है या अन्य एडवोकेट है जिनको विशेष रूप से ये सिविल सब्जेक्ट में पकड़ है, किसी को लैंड एक्विजिशन पे पकड़ है, किसी को क्रिमिनल अलग अलग विषय पे पकड़ है, किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन में अच्छा पकड़ है, तो वो नाम उसका भी एक डेटा बैंक हम बनाएंगे, ताकि हम जब कोई स्टडी सर्कल या कोई सिंपोजियम ऑर्गेनाइज क्योंकि जब तक हम अच्छे अधिवक्ता नहीं बनाएंगे तो बार से हम बेंच में भी अच्छे अधिवक्ता कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे, और जब तक बार और बेंच में अच्छा अधिवक्ता नहीं बैठेंगे तब तक हमारा जो गोल है लोगों को न्याय दिलाने का प्रक्रिया, इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह जाएंगे। इसलिए हमें जैसे ध्यान देना है अधिवक्ताओं की स्किल की डेवलपमेंट के बारे में, वैसे ही हमें ध्यान देना है प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। बार और बेंच के बीच में जो एक सम्मानीय स्थान होना चाहिए वो बरकरार रहे, सीनियर और जूनियर्स के बीच में जो बहुत अच्छा कोर्डियल रिलेशन रहना चाहिए वो बरकरार रहे, हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे को मर्यादा
के साथ रहे। तो ये प्रोफेशनल एथिक्स का भी हमारे प्रोफेशन में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है, वो भी हमें गाइड करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अंतिम व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए जो न्याय केंद्र हम चलाते हैं, न्याय केंद्र का स्थापना कैसे करना चाहिए, कौन कौन सा जगह स्थान के नाते हम चुनेंगे, ऐसे व्यक्ति जहां बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग रहते हैं, जहां पे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, जिन्हें आवश्यकता है, जिनका क्षमता नहीं है कोई एडवोकेट्स को आके वो फीस देके अपना समस्या के निवारण करे, हमें उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। इसलिए एक न्याय केंद्र हम कहाँ स्थापना करें, कहाँ पे करना है, उसका डूज एंड डोंट्स, ये हमें बखूबी सबके सामने रखना है, क्योंकि वो जब सीख के जाएंगे अभ्यास वर्ग से, वही जाके वो अपना फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे। और उसी न्याय केंद्र के अंदर जैसे एक टोली रहेंगे, सीनियर एडवोकेट उसमें रहेंगे, जूनियर एडवोकेट रहेंगे, हम लॉ स्टूडेंट को भी जोड़ेंगे, बाकी एडवोकेट्स जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के साथ काम कर रहे हैं हम उनको भी जोड़ेंगे, क्योंकि हम डायरेक्टली अधिवक्ता परिषद की न्याय केंद्र से कोई इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए, हमारा जो सिद्धांत है, हम कोर्ट में जाके केसेस नहीं फाइल करेंगे। हम जो सरकार की बनाई हुई जो अपना लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उन तक हम ऐसे लोगों को पहुंचाने का एक ब्रिज के नाते काम करेंगे, और अवश्य हम देखेंगे उनको वहां पे न्याय मिलने का सारे प्रक्रिया बखूबी उनको मिल रहा है या नहीं। और जहां तक कोई सोशल इशू हो और बड़े सोसाइटी एट लार्ज की विषय है, वो हम परिषद के नाते हम उसको न्याय के दरबार में हम चुनौती देने के लिए ले जा सकते हैं। लेकिन जैसे हमारा सिद्धांत है, अधिवक्ता परिषद के नाम पे हम कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या कोई ऐसे लिटिगेशन फाइल नहीं करेंगे। तो ऐसे जो डूज एंड डोंट्स है, गाइडलाइन, वो हमारे देने की आवश्यकता है। ऐसे न्याय केंद्र से हम कोई फीस नहीं चार्ज करेंगे, ये सेवा की भाव से हम करेंगे। और ऐसे ही न्याय केंद्र में आने वाले सभी लिटिगेंट की डिटेल्स हम रजिस्टर में भर के रखेंगे, उनका क्या तकलीफ है, क्या सुझाव हमने दिए हैं, अगला दिन क्या उनके लिए सुझाव रहेगा, ये सारे हमारे पास डेटा बैंक रहना आवश्यकता है। और ये सारे अभ्यास वर्ग में अधिकतर अपना जो सेशन रहेगा वो इंटरैक्टिव सेशन रहेगा, ताकि जिनके मन में जो डाउट हो वो वहां पे जो पदाधिकारी, जो दायित्ववान कार्यकर्ता उनको ट्रेनिंग देने के लिए अपना विषय रख रहे, उनसे वो अपना क्लैरिटी ले ले, अपना विषय को क्लियर करे। वैसे ही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, समाज के अंदर एक वॉचडॉग के नाते जब हमारा कार्यकर्ता काम करते हैं, और जहां पे कोई अन्याय हम देखते हैं सोसाइटी एट लार्ज के लिए, कोई भी विषय पे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता होता है, तो वो चाहे आर्टिकल 32 हो, 226 हो, 227 हो, या सीपीसी 91 हो, या सीआरपीसी 133 के तहत हो, तो उसमें हमारा क्या भूमिका है, कैसे हमारा निभाना है, उस पे भी हमारे कार्यकर्ताओं को अभ्यास वर्ग में एक क्लियर गाइडलाइन देने की आवश्यकता है। ये बताने की आवश्यकता है जो नए नए बिल्स जो पार्लियामेंट में आ रहे हैं, स्टेट असेंबली में आ रहे, उस पे अध्ययन होना चाहिए। और अध्ययन होने के बाद अगर हमें लगे जो वहां पे कोई भी आपत्ति जताने की आवश्यकता है, तो उसका जो प्रॉपर फोरम बना हुआ है वहां पे हमें आपत्ति देना चाहिए। ऐसे कई बार हुआ है हमारे अधिवक्ता परिषद की देश भर की कहीं प्रांत की कार्यकर्ताओं ने और सफल कदम उठाए, और बाद में उस फोरम की ओर से उनको बुलाए भी, उनसे सुझाव लिए गए, और बाद में जैसे अभी राजेंद्र जी भी कह रहा था, तो उनके सुझाव की स्वीकार भी किए हैं, जो ऐसे सुझाव
ये फलाना संगठन से, ये फलाना अधिवक्ताओं की ओर से आया था और इसमें हमने उसको इनकॉर्पोरेट किए हैं। और लेकिन उसके बावजूद भी अगर सुझाव नहीं मान रहे, लेकिन ऐसे विषय है जो समाज के हित में नहीं है, तो फिर उसकी वायरिस को हमें कोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। फिर दोबारा बात आ रही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में, तो हम कैसे जाए? और जब आम तौर पे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात करते हैं, तो उसके लिए भी साल भर हमें कुछ एक्सरसाइज की आवश्यकता है। हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बहुत ज्यादा उपयोग करने की आवश्यकता है। उस पे भी हमारे एक छोटा टीम बनना चाहिए जो राउंड द ईयर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे अलग अलग विषय पे, समाज की जो चर्चित विषय है जहां पे ध्यान देने की आवश्यकता है, ऐसे अलग अलग विषय पे अलग अलग सरकारी दफ्तर से या अन्य कोई दफ्तर से राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में डेटा कलेक्ट करना चाहिए उत्तर के नाते, और उस डेटा की एक बैंक बनाना चाहिए। तो ऐसे जब तथ्य से भरा हुआ हमारा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की वो डेटा बैंक होगा, तभी हम सक्षम होंगे कोई अच्छे महीने में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करके, और वहां से रिजल्ट मिल सकता है हमें। तो इसलिए ये भी राउंड द ईयर एक एक्टिविटीज में आ रहे हैं जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पे एक्सरसाइज होना जरूरी है। हमारे संगठन की विषय में जैसे अभी सत्यप्रकाश जी और चंद्रपाल जी और भी कई कई कार्यकर्ताओं ने इसमें भाग लिए। जो संगठन हम कैसे बनाए, हम जिलों तक कैसे संगठन को पहुंचाए, और जैसे अभी हम लक्ष्य ये भी रख रहे जो 1-2 साल के अंदर हम हर एक तालुका हो, डिस्ट्रिक्ट हो, हर एक कोर्ट यूनिट तक पहुंचे, कोर्ट यूनिट में हमारा संगठन बने। तो इसमें मैं थोड़ा क्लैरिटी देना चाहता हूं, हमारे जो लोएस्ट यूनिट है वो कोर्ट यूनिट है, बार एसोसिएशन नहीं है, कोर्ट यूनिट। एक कोर्ट जहां फंक्शन कर रहा है वहां हो सके एक बार एसोसिएशन की 5 रूम है, 5 रूम में अधिवक्ता बैठ रहे। तो प्राइमरीली हमें एक कोर्ट यूनिट गठन करना है, और कोर्ट यूनिट के नीचे एक एक बार एसोसिएशन हो गया, कई चेंबर ब्लॉक हो सकते हैं, कई लाइब्रेरी ब्लॉक हो सकते हैं जहां पे अधिवक्ता नॉर्मली बैठते हैं। उसके लिए हम एक दो कार्यकर्ताओं को दायित्व दे सकते हैं जो वहां के इंचार्ज के नाते वहां की हर अपना सूचना उन तक ले जाए, वहां की अधिवक्ताओं को हमारे साथ जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। इस नाते उस कोर्ट यूनिट का एक कार्यकर्ता वो काम करेंगे। तो ऐसे जैसे चर्चा में आया, जो संगठन की जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है वो संगठन का प्रवास। तो जब तक हम अपना दायित्व में जो जो क्षेत्र आता है वहां की एक्सटेंसिव प्रवास नहीं कर पाएंगे, और प्रवास के साथ साथ कार्यकर्ताओं से व्यक्तिगत रूप से मिलना, उनके साथ जैसे अभी चर्चा में ये भी आया जो हमारे संगठन का, अभी सत्यप्रकाश जी मेरे ख्याल कह रहे थे, संगठन का जो मूल मंत्र है वो है इंटेंस लव, जिसमें कोई छल कपट नहीं, इंटेंस लव। वही एकमात्र मानदंड है जो हम एक दूसरे कार्यकर्ता के साथ हमारा रहना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं, किसी भी प्रांत हो, किसी भी भाषा की हो, किसी भी मजहब की हो, किसी भी जाति की हो, हमारे सामने हमारे संपूर्ण अधिवक्ता वही हमारे लिए सब कुछ है। सभी अधिवक्ताओं तक हम पहुंचेंगे, उसमें हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो कैसे हम अधिवक्ताओं तक पहुंचे, कैसे उनका साथ हमारा इंटरेक्शन हो, कैसे व्यक्तिगत संपर्क के नाते हम उनको संगठन के काम में जोड़े। जैसे बसंत छावा भी बता रहे थे अभी, जो हमें सतर्क रहना चाहिए, जो विरोधी विचारधारा की जो लोग हैं जो संगठन को या देश हित को नुकसान पहुंचा सकता है, बिल्कुल वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर इतना कॉन्फिडेंस है और उनमें उतना काबिलियत है, पहले भी हुआ है, आगे भी होते रहेंगे,
जो कुछ सालों तक जो विरोधी विचारधारा की माने जाते थे, वो हमारे कार्यकर्ताओं के संस्पर्श में आने के साथ उनके साथ व्यक्तिगत व्यवहार और व्यक्तिगत उनका प्रभाव के कारण वो जो गलत दिशा में सोचने वाले थे, वहां से वो हट के मूल धारा में आ जाते हैं और भारत माता की एक सपूत के नाते हमारे साथ कदम पे कदम मिला के चलते हैं। ये भी दृष्टांत हमारे सामने है। तो हमारे कोई भी ऑप्शन छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सही मायने में जो कई कार्यकर्ताओं ने सचेत किए हैं हमारे, वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए अवश्य, क्योंकि एक गलत व्यक्ति बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए किसी भी कार्यकर्ता को ड्राइविंग सीट में बैठाने की पहले उनका ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हुआ है या नहीं, अच्छे से गाड़ी चला सकते हैं या नहीं, एक्सीलेटर और ब्रेक की सूझबूझ उन पे है या नहीं, सामने वाले किसी को एक्सीडेंट तो नहीं कर देंगे, उसका विश्वास के साथ ही हम किसी कार्यकर्ताओं को ड्राइविंग सीट में बैठने के लिए चयन करें। हम तो सबको लेके चलेंगे, लेकिन ड्राइविंग सीट पे जिनको बैठाएंगे उसके बारे में पक्का ड्राइवर बनाने के लिए हमारे ये अभ्यास वर्ग की परंपरा चलता है। वो हम ठीक से निभाएंगे तो हम निश्चित रूप से जैसे आने वाले समय में अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हमारे अच्छे अच्छे दायित्व लेके काम करेंगे और संगठन को आगे लेके बढ़ाएंगे। जैसे अलग अलग सत्र जो हम करेंगे, इसका संरचना जैसे हम शुरुआत में कहा, अपना अपना प्रांत की हर एक पैरामीटर के अनुसार हम उसको रख सकते हैं, लेकिन जरूर हमारा जो एक परिवार का भी परंपरा रहता है, जो हम कुछ काम करते हैं तो हमारे घर के बुजुर्गों से एक बार सलाह परामर्श कर लेते हैं, उनसे एक बार ओपिनियन ले लेते हैं। जैसे वो केंद्रीय टोली हो, राष्ट्रीय टोली हो, प्रांत की टोली हो, जिले की टोली हो या कोट इकाई की टोली हो, हर जगह हमें अपना संरचना के साथ साथ हमारे सीनियर से थोड़ा एडवाइस लेने का जो परंपरा है उसको हम बरकरार रखेंगे तो वे सीनियर कार्यकर्ता अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए हैं उसका लाभ हम सबको मिल सकता है। और अंत में हमारा जो आइडियोलॉजिकल बैटल है, हमारा जो आइडियोलॉजी है, उस विषय में बड़े स्पष्ट रूप से धारणा देने की आवश्यकता है। और हमारा जो अप्रोच है टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द नेशन, टुवर्ड्स द नेचर, वो है एक होलिस्टिक अप्रोच। वो हमेशा हमारे अंदर रहना चाहिए। और समाज का क्या अपेक्षा है एक अधिवक्ता से, इस विषय पे भी चर्चा होना चाहिए और हम उस अपेक्षा के अनुसार अपना कार्य कर पाए, इसका भी दिशा निर्देश होना चाहिए। और आखिर में अपना देश और समाज को जोड़ने में, परम भैरव प्राप्त करने में हमारे क्या भूमिका हो सकता है, वो अपने कार्यकर्ताओं को इस अभ्यास वर्ग से दिशा निर्देश देने की आवश्यकता रहता है। हमारे एवरीडे लाइफ में, कंट्री एंड सोसाइटी इन एवरीडे लाइफ, ये हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर आना चाहिए। जो काम कर रहे हैं वो समाज और देश के लिए कर रहे हैं और ये एवरीडे इन लाइफ हमारे अंदर वो उसका अनुरणन होने की आवश्यकता है। वी आर नॉट कॉम्पिटिटर टू एनीबॉडी, हम किसी का कॉम्पिटिटर नहीं है। हम तो एक अच्छे दिशा, अच्छे उद्देश्य लेके अंतिम व्यक्ति तक न्याय दिलाने के लिए अपना न्यायिक प्रक्रिया को धीरे धीरे सुधार लाने के लिए
और जो अपना मूलभूत भारतीय आधार है, उस आधार के चलते पुराने और नए ख्यालात का मिलाते हुए, जैसे हमारे मार्गदर्शन अभी दत्ता जी ने किए हैं, उसी प्रकार से हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और व्यक्तिगत रूप से हमारे क्या बनने की आवश्यकता है? आदर्श पे जीते हैं, तो हमारे संगठन की परिचय भी वैसे ही होगा। और इसके साथ साथ हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, जो मेनी डायमेंशनल विजन होकर भी हमें सिंगल पॉइंट कंसंट्रेशन होना जरूरी है। बहुत विषय है, उस पे हमें ध्यान रहना चाहिए, उस पे हमें विजन रहना चाहिए, लेकिन हमारे दायित्व प्रायोरिटी बेसिस पे एक सिंगल कंसंट्रेशन भी होना चाहिए। जब जिसकी आवश्यकता ज्यादा है, उस पे अपना कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए। हमें सोशल कॉन्शियसनेस हमेशा रहना चाहिए। वी आर द वॉच डॉग ऑफ द सोसाइटी। ये एक कार्यकर्ताओं की हमेशा सतर्क रहने का कारण होता है। जो कहीं भी कुछ हो रहे, हमारे कार्यकर्ताओं को वो नजर में रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए, और कानूनी ढंग से हम क्या कर सके, उस पे हमें सॉल्यूशन निकालने की अलग अलग डायमेंशन से सोच रहना चाहिए। और जब हम ऐसे हम जिस परिवार से आ रहे, हमारे फैमिली, वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रमुख दायित्व की जगह रहता है। तो ये सबके बीच में बैलेंस करने का एक आवश्यकता है। ये प्रॉपरली हम जब बैलेंस करेंगे, तब हर क्षेत्र एक दूसरे क्षेत्र से कोई टकराव की संभावना नहीं रहेंगे। जैसे हमने अभी चर्चा किया, जो प्रोफेशन में नंबर 1 रहने के लिए हम क्या-क्या दिशा निर्देश देंगे, संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, अपना दायित्व निभाने के लिए हम क्या-क्या दिशा निर्देश देंगे, वैसी फैमिली का साथ अपना जो संपर्क है, वो भी उतना ही जरूरी है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर हमें व्यक्तिगत पूछा जाए प्रायोरिटी बेसिस पे, तो मैं बताऊंगा, हमारे एक कार्यकर्ता की फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए उनकी फैमिली, उनकी परिवार। और उसमें भी 2 फेज है। पहले अपना न्यूक्लियस फैमिली, जिसमें अपना माँ, अपना सेल्फ अर्निंग हो रहे। जिस प्रोफेशन के नाते हम डेली कोर्ट में जा रहे, प्रैक्टिस कर रहे, मुकदमा लड़ रहे और वहां से अर्निंग कर रहे। और इसका दूसरा पार्ट जो है, वो है वी आर एन इंस्ट्रूमेंट दैट वी आर रेंडिंग, वी आर एक्सटेंडिंग, वी आर हेल्प टू गेट justice to the world, to the country,
to the society and the last man of the society. ये सबको न्याय दिलाने का जो प्रक्रिया है वो भी हमारे प्रोफेशन के जरिए हम कर रहे हैं, तो उसको हम मान रहे हैं पार्ट 2। और ओवरऑल प्रायोरिटी का जो पार्ट 3 आ रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन। और ऑर्गेनाइजेशन का नंबर 2 हमारे बैंक बैलेंस या पैसा कितना है हमारे पास, और नंबर 3 होता है प्रॉपर्टी। तो ये जो 3 बॉल है दोज आर द रबर बॉल्स। तो जगलिंग करते करते कभी वो हाथ से गिर भी जाए तो रबर बॉल है, दोबारा वापस आ सकता है। और जो 2 ग्लास बॉल्स है वो पहला बॉल है अपना हेल्थ, दूसरा बॉल है अपना फैमिली। तो ये जो दोनों ग्लास बॉल है हेल्थ एंड फैमिली, इस पे हमें ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। ये लंबी समय तक हमें सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। बाकी दिन तो 3 जो रबर बॉल है वो तो ड्रॉप करके भी दोबारा आ सकता है, लेकिन ये ग्लास बॉल्स का बाखूबी हमें पता है इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसलिए हमें इस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद एक ऐसे संगठन है और अपने कार्यकर्ताओं को अपना स्किल्स में भी ट्रेन करके हम अच्छे सफल अधिवक्ता बनाने में सक्षम होंगे और साथ साथ उन्हीं के द्वारा समाज और देश की सर्वांगीण उन्नति के लिए काम करेंगे, ये मेरा आशा है। और आज नेशनल काउंसिल मीटिंग की इस मंच से इस पुण्य दिन में मैं आशा करता हूं आने वाले समय में हमारे सभी कार्यकर्ताओं हमारे सभी लक्ष्य को पूर्ण बखूबी करेंगे और अपना आदर्श को निभाते हुए अपना अपना क्षेत्र में काम में कार्यरत रहेंगे। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम। जयदीप जी धन्यवाद। कहीं सुना है कि कोई अच्छा व्यक्ति ही अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा व्यक्ति ही अच्छा वकील बन सकता है, अच्छा व्यक्ति ही अच्छा इंजीनियर बन सकता है। तो आपने जो मार्गदर्शन दिया है वो अच्छे व्यवसाय के लिए, अच्छे प्रोफेशन के लिए, अच्छे संगठन के लिए तो है ही, लेकिन अच्छे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं वो भी उपयोगी आपने मार्गदर्शन दिया है। फिर से आपका धन्यवाद। अभी हम इस सत्र के आज के अंतिम सत्र के अंतिम विषय पर आ रहे हैं।
2 घंटे से हम वर्चुअल साथ में हैं, तो अपनी खुद की पावर का भी टेस्ट हो गया है और अपने मोबाइल या तो जो इंस्ट्रूमेंट हम लेके बैठे हैं, उनका भी टेस्ट हो गया है। तो अगर आज कोई दिक्कत आई है, तो कल रिचार्ज की व्यवस्था रखेंगे और डेटा भी अगर खत्म हो गया है, तो डेटा की भी व्यवस्था रखेंगे। अभी 15 मिनट का समय है अपने पास, तो ज़ोनल रिपोर्टिंग होगा। तो सबसे पहले आदरणीय पद्माकांत जी अपने ज़ोनल की रिपोर्टिंग करेंगे। इसके बाद आदरणीय चरण सिंह जी यूपी और उत्तराखंड का ज़ोन का रिपोर्टिंग करेंगे और अंत में आदरणीय सुनील जी बिहार और झारखंड का जो अपना ज़ोन है, उनका रिपोर्टिंग करेंगे। सबसे पहले पद्माकांत जी। नमस्कार। जैसा कि जोनल रिपोर्टिंग के बारे में इस बारी जो स्टेट्स हैं मेरे जोन में, नॉर्थ जोन जो हमारा पड़ता है, इसमें अगर हम शुरुआत दिल्ली से करें तो दिल्ली प्रदेश में काफ़ी, क्योंकि सभी कुछ ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड चल रहा है, तो दिल्ली प्रांत ने पिछले कोरोना काल में अप्रैल से लेके और अभी तक कुल 7 वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे स्टडी सर्कल कम वेबिनार्स किए हैं, जिनमें सिटिंग हाईकोर्ट जजेस, रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस एंड सीनियर एडवोकेट्स ऑफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन लोगों ने वहाँ पे वो स्पीकर रहे हैं और इस तरह से ये बहुत ही सक्सेसफुल इन्होंने कंडक्ट किए हैं दिल्ली की टीम ने। और इसके अलावा दिल्ली में एक 2 दिन की वर्कशॉप भी रही थी, जिसमें 450 से अधिक अधिवक्ताओं ने ऑनलाइन भाग लिया था और जिसमें कई विषय काफी गहराई से उस पर चर्चा हुई थी। इसके अलावा दिल्ली का एक बहुत ही अच्छा प्रयास रहा कि नेशनल वर्चुअल क्रिमिनल मूट कोर्ट का आयोजन किया गया 6 से 8 नवंबर के बीच में, और इसमें काफी अच्छी संख्या रही जिन्होंने भाग लिया, और जो जजेस में रहे उनमें भी काफी सीनियर एडवोकेट्स और रिटायर्ड जजेस उसमें रहे जो जजेस रहे। तो इस तरह से एक नया प्रयास जो दिल्ली ने शुरू किया है, और जैसे जयदीप ने बताया कि बाकी स्टेट्स को भी उसको फॉलो करना चाहिए और वर्चुअल कोर्ट्स या आने वाले समय में फिजिकल कोर्ट्स का आयोजन, ताकि यंग एडवोकेट्स हमारे साथ जुड़े। तो ये प्रयास दिल्ली का सराहनीय है। इसके बाद मैं चंडीगढ़ के तरफ आऊंगा। चंडीगढ़ रेगुलरली पिछले जब से कोर्ट बंद है तब से रेगुलरली अपने स्टडी सर्कल्स अप्रैल माह से ही चल रहे हैं ऑनलाइन, और प्रति माह बिना नागा ये जो स्टडी सर्कल्स हर महीने इन्होंने किए हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे और यूनिट से हाईकोर्ट इकाई और कैट यूनिट है, उन्होंने भी स्टडी सर्कल्स 2-3 किए हैं, और सभी दिवस जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है और ये मनाया गया है अच्छे से ऑनलाइन, बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया था। इसके अलावा जो काल में जो रिलीफ वर्क में भी काफी अच्छा काम जो कैट यूनिट ने पीपी किट्स बांटी हैं पीजीआई में, यहाँ पे हॉस्पिटल में, और जो और भी हेल्प किसी तरह से कर सकते थे पीएम केयर फंड्स में, या कोई भी जो हमारे संगठन है उनके साथ मिलके जो है वो सहायता में काम किया है। पंजाब ने पहले 8 ऑनलाइन स्टडी सर्कल्स किए और उसमें अधिवक्ताओं ने पार्टिसिपेट किया एज ए स्पीकर, और पंजाब की टीम ने उसको बड़ा अच्छा चलाया। इसके बाद पंजाब की टीम ने एक ऑनलाइन जस्टिस डीवी सहगल मेमोरियल लेक्चर सीरीज शुरू की है, और जिसमें 9 लेक्चर्स अभी तक हो चुके हैं, जिसमें से 7 लेक्चर ऑनरेबल जजेस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सिटिंग जजेस उन्होंने वो उसमें वक्ता रहे हैं, और बाकी 2 में रिटायर्ड जजेस जो है वो वक्ता रहे हैं। इसके साथ ही अभी ये सीरीज चल रही है, जिस सीरीज में 2 लेक्चर और होने हैं। इसके साथ ही युवा अधिवक्ता दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे, ये सभी कार्यक्रम किए गए हैं ऑनलाइन ही, और आने वाले समय में महिला दिवस वगैरह कार्यक्रम जो है उसके
था, उसमें हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट मुख्य वक्ता रहे थे और दीपिका कालराज मेंबर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वो भी वक्ता रही थी। इसके अलावा हरियाणा की विस्तृत जानकारी जो वृत्त था वो चंद्रपाल जी ने दिया था अपने जब सेशन में। चंद्रपाल मैं उसमें भी सभी ऑनलाइन एक लेक्चर सीरीज बहुत ही अच्छी कंडक्ट कराई गई जस्टिस एन के सांगी जी के मेमोरियल लेक्चर सीरीज के नाम से, और उसमें सिटिंग जजेस हाई कोर्ट के, सीनियर एडवोकेट्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, इनका उसमें उद्बोधन रहा था। और हरियाणा की यूनिट बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अभी भी जो 22 के 22 जिले हैं उनमें इकाइयां हैं और 16 सब डिविजन्स में भी इकाइयां हैं और अच्छा काम कर रही हैं। और सभी जो कार्यक्रम होते हैं सेंटर की तरफ से उनमें उनका सबसे ज्यादा एक्टिव योगदान रहता है। तो हिमाचल प्रदेश की स्थिति है, हिमाचल प्रदेश में भी ऑनलाइन बहुत सारी एक्टिविटीज पीछे रही हैं और अभी तक टोटल वहाँ पे 4 या 5 ऑनलाइन स्टडी लेक्चर सीरीज, तो बी आर अम्बेडकर लेक्चर सीरीज चल रही है ऑनलाइन, उसमें 4 लेक्चर 4 चाहे 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। और अधिवक्ता परिषद हिमाचल प्रदेश ने नई यूनिट्स भी खड़ी की हैं, जहाँ पे यूनिट्स नहीं थी, बैजनाथ, जोगिंदरनगर, नाहन, मतलब ये 3 जिलों में पहले यूनिट्स नहीं थी, वहाँ पे अच्छी यूनिट्स अब वो खड़ी होगी और काम वो लोग कर रहे हैं। इसके अलावा अमित चंदेल जी वहाँ के महामंत्री, उनका प्रवास रेगुलर रह रहा है, अभी कोरोना में भी वो प्रवास कर रहे हैं और नई इकाइयां जो हैं जहाँ जहाँ सब डिविजन्स में भी जाके इकाइयों का गठन किया जा रहा है। और न्याय केंद्र भी हिमाचल प्रदेश में एक कोशिश की गई है कि न्याय केंद्र की भी शुरुआत 1-2 जिलों में हो जाएगी और उसके लिए जो ग्राउंड वर्क महामंत्री जी करके आए हैं। इसके अलावा फाउंडेशन डे हो चाहे नेशनल यूथ डे हो, ये सारे दिवस उन्होंने मनाए हैं। ऑनलाइन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन हो चाहे मेंबर सिग्नेचर कैंपेन हो, सब में पार्टिसिपेट किया है। और ट्विटर हैंडल है, फेसबुक है, यूट्यूब चैनल है, सभी चीजें ऑनलाइन बहुत एक्टिव यूनिट हिमाचल की अभी काम कर रही है। तो मेरे ख्याल से सभी यूनिट्स के बारे में मैंने जानकारी दे दी है, तो आप सभी का धन्यवाद। चरण जी। चरण सिंह जी। शायद कनेक्टिविटी गड़बड़ लगती है। सुनील जी को बुला लीजिए तब तक। हाँ सुनील जी। सुनील जी। हाँ सुनील जी बताइए, और बाद में प्रसाद भी दीजिए। अनम्यूट कर। बिहार में विवेकानंद जयंती 12 स्थानों पर हुआ और स्वाध्याय मंडल 3 स्थानों पर हुआ है, पटना, आरा, कटिहार। स्थापना दिवस क्षेत्र स्तर पर हुआ, बिहार और झारखंड का संयुक्त हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय क्षेत्र प्रचारक श्री रामदास चक्रवर्ती जी का मार्गदर्शन हम लोग को प्राप्त हुआ है। संविधान दिवस भी दोनों प्रदेश बिहार और झारखंड दोनों का अलग अलग हुआ है। और झारखंड का महिला सम्मेलन 7 नवंबर को हो चुका है। इसमें चीफ गेस्ट सुमन जी थी और दोनों प्रदेश में कोरोना पीरियड में अपने अपना स्तर से
जरूरतमंदों को मदद किया है। बिहार का महिला सम्मेलन अभी ड्यू है। बिहार में फरवरी माह में महिला सम्मेलन मतलब होने की संभावना है। धन्यवाद जी। चरण सिंह जी, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं अभी। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, ठीक ठीक। तो दोनों जनरल सेक्रेटरी का धन्यवाद और पूरे 2 घंटे तक मुझे सहन किया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। और मुझे सत्र संचालन की जिम्मेदारी दी, इसलिए केंद्रीय टोली का भी धन्यवाद। ओवर टू सुमन जी। श्री चरण सिंह जी रास्ते में है, उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई थी, इसलिए बात नहीं हो पाई। अभी वो जुड़ रहे हैं दोबारा। नमस्कार जी। राजेश जी हिमाचल, नमस्कार जी। संख्या 215 से 101 हो गई है। जी नमस्कार जी। कार्यक्रम में रहे। जी जी। राजेश जी डबल फिगर में आ गया, 96 हुआ है। आईटी का टाइम है वैसे। श्रीमान पद्मकांत जी को नमस्कार, विपिन जी को नमस्कार, अमित जी को नमस्कार, बहन सुमन जी को नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पाल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्कार जी। उदय जी नमस्कार। विपिन जी राम राम। अनीश कुमार नमस्कार। सतपाल जी अनुराग ठीक है आप? जी को नमस्कार। बिल्कुल बढ़िया।